अभी आधे घंटे में क्या कर रहा था तू? बैठ चुपचाप से इसमें। नो, जब अब लंच होगा तभी जाना। You are having 20 minutes free time. What were you doing at that time? That is not my concern. I have to give answer to principal sir, or I have authority. Why you are wandering in my class? You have been given that enough time. You better manage your time. I cannot allow you. बहुत कस के हैं, go there side. I don't mind. Class से बाहर नहीं जाना. Fair ना? You are already having half hour break. What were you doing at that time? Okay, ऐसा नहीं है. आप मेरे या तो क्लास के पहले जाएं या क्लास के बाद जाएं, बीच क्लास में नहीं जाने दूंगा. Okay. चलो, तो आपने क्या सीखा बेटा? रिपीट करो, मैं जिससे पूछूं बताएगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ. नवीन पटेल. नवीन. यस सर. हाँ बेटा, क्या बोला मैंने अभी? इसको रिपीट करो. काइंडली रिपीट व्हाट आई हैव सेड नाउ. व्हाट आई हैव सेड. इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर, क्या? Sir, their slope of sir product of their slope is equal to 1 minus 1. Minus 1, not 1, please. Yes sir, minus 1. And sir, And if lines are parallel, then sir slope is equal. then their slopes are equal. Clear है ये कि Equal. नहीं clear? सबको clear है? Yes sir. है ना? Yes. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे. यही समरी था मेरा. हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. लेट मी आस्क मोहम्मद अलीश खान. यस सर. अच्छा, आलिश नाम है आपका, मोहम्मद नाम है? क्या नाम पुकारूं मैं आपको? अलीश. अलीश. हाँ, तो अलीश साहब ये क्वेश्चन रीड बस का हम देखेंगे. पढ़ो क्वेश्चन को. Okay sir. Show that the line joining the points 2, -3 and -5, 1 is parallel to the line joining to the points 7, -1 and 0, 3. ओके, मोहम्मद जी ने एकदम जनशताब्दी राजधानी की स्पीड से पढ़ दिया क्वेश्चन. हमें दो पेयर्स दिए हैं, यस और नो, और मुझे शो करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं. अभी मैंने बताया ना कि इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. Their slope will be equal. बोलो तो इफ स्लोप्स आर इक्वल देन दोस लाइंस मस्ट बी. तो स्लोप निकालो दोनों का, जल्दी निकाल के बताओ कॉपी में अपने क्या आ रहा है. Yes sir. फटाफट बताओ. -4/7. 1 minus of -3 plus 3 -5 plus 2, that is -4/2. 3 minus of -1 Yes sir. plus 1. कहाँ पे गलत है? अच्छा, -5 -2 हुआ, -4/2. ओके ओके, वही तो मैं सोचा गलत क्या हो गया. 0 - 7, that is -4. 0/7. Because slopes are -7. equal means the lines are Parallel. parallel Yes ना. sir. slopes equal होते हैं, Yes, lines sir. equal कैसे होगी? lines are parallel. Parallel. ओके. हाँ, इसको बताओ कैसे करेंगे. परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो रुको, मेरे को पूछने दो किसी बच्चे से. बाकी लोग सॉल्व करिए, जिसको बोलो पहले रीड करेगा क्वेश्चन. युगांशी, प्लीज रीड द क्वेश्चन बेटा. Show that the line joining the points 2, -5 and -2, 5 is perpendicular to the line joining the points 6, 3 and 1, 1. मुझे एक लाइन दिया है जो 2 - 5 -2, 5 को जोड़ रही है. मुझे एक और लाइन दिया है जो 6, 3 और 1, 1 को जोड़ रही है. मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर. तो अभी मैंने परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन बताई थी?
first I'll try to find slope m1, then I'll try to find slope m2, and if the product of their slope are equal to -1, then I can say that they are perpendicular. Find m1 and m2 and then tell me. m1 m2 निकालो. What is m1? 5 minus of -5. Sir, m1 -5/2 and m2 -2 by -. -2 They are -2. reciprocal of each other. 10 by -4, that is -5/2. हाँ, and m2 बताओ. 3 So -2 by -1, -5. -2.5. that is 2 by 5. You can easily see it is -5/2, it is 2 by 5, तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? And there -1. पैरेलल और So पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या होंगे? They are perpendicular. Perpendicular. वेरी गुड. ठीक है, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है मैथ्स? Easy. इजी है ना? ठीक. Excuse me, sir. Yes, sir. But that theorem, it may become on exam. Sorry Alish, I couldn't hear you beta. Repeat. That theorems that we done perpendicular and parallel, it may come on exam or not? Not proof, but application definitely. Yes, sir. Proof will not be asked, but application will be asked. Okay, read this question and try to solve this question. Let me ask who will read. Varsha. yes, sir. Yes, read the question. If the line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24, find the value of x. So I am given 2 points -2, 6 and 4, 8, and I am given another. Okay, और मैं जो अब ये लिंक्स मैं भेज रहा हूँ YouTube पे, अगर आप क्लास अटेंड नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसको रिफर कर सकते हैं. ठीक है, और क्या दिया मुझे? 8, 12 and x, 24. and what it is given? Perpendicular. Perpendicular means what? First I will find m1 and I will find m2, M2. and what condition I will use? m1 into m2 is equal to, हाँ चलो बताओ. -1. m1 निकालो, क्या होगा m1? जल्दी से बताओ. 4 minus of -2, तो क्या हो जाएगा? 4 plus 2 into m2. m2 बताओ जल्दी से. 24 minus 12. Then x is equal to 4. X minus 8 is equal to -1. What is 8 minus 6? 2. What is 4 plus 2? 6. 6. 24 minus 12? 12. What is x minus 8 is X -8. 6. Same. क्या होगा? 2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 to 4 minus x plus 8. अब ये 8 इधर जाएगा. Minus x will be -8 plus 4, that is -4. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. 4. आ रही बात समझ में? तो पैरेलल Yes, परपेंडिकुलर कंडीशन आया कि नहीं आया समझ में? और कैसे निकालना Yes, I है? got you. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ू. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस मूव. लिख रहा है? लिख लिया? तो लिखना तो बोल फिर कि नहीं लिखा हूं सर, वेट कीजिए 1 मिनट. अच्छा ठीक है. हाँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये होमवर्क है, बस आप बताओ इसमें करना क्या है. रीड दिस क्वेश्चन. वेट. अनुष्का, रीड द क्वेश्चन बेटा. अनुष्का, अनुज आप पढ़ लो बेटा क्वेश्चन. Okay. Without using Pythagoras theorem, so that the points 4, 4, विदाउट यूजिंग. अगर मैं बोलता यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या करते? पहले ये बताओ, फिर विदाउट की बात करेंगे.
तो वो सबकी स्लोप निकाल लेते हैं, उसकी जो हाईएस्ट स्लोप रहती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू उसका नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम बोलता तो मैं क्या करता, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम से बोलेगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, मेरे को पता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन ये Square. क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस बोल रहे हैं, विदाउट यूजिंग बोल रहे हैं? Without using. मुझे डिस्टेंस नहीं निकालना है, मुझे किससे निकालना है? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्लोप्स निकालना पड़ेगा, m1 m2 और m3। अगर m1 m2 m3 में से किसी भी दो का प्रोडक्ट, मतलब हो सकता है m1 इंटू m2 -1 हो, या हो सकता है कि m2 इंटू m3 -1 हो, और इट में भी m1 इंटू m3 इक्वल टू -1, तीनों में से कोई भी एक पेयर अगर -1 हो गया, which means that it is having a 90 degree, which means that it is a right angle triangle. Got यस it? सर, Yes, यस sir. सर। तो आप फटाफट तीनों स्लोप्स निकालो। आई एम गिविंग यू टाइम। हाँ, अभी मैंने बोला मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यू विल सॉल्व ऑन योर ओन, आई विल जस्ट गिव द हिंट। m1 कितना आया? m1 तो 1 आने वाला है। m2 कितना आ रहा है? m1 कितना? 1 आया। m2 बताओ। 5 - 4 1, 3/4 -1। m1 m2 से ही साफ दिख रहा है कि m1 into m2 will be -1, hence proof। yes or no? m3 निकालने की जरूरत है क्या? अब तुमको पागल कुत्ता काटा है तो निकालो बैठ के, ठीक है? वेस्ट ऑफ टाइम, यू हैव टू बी एबल, you should be able to manage your time. Basically CBSE Yes, wants sir. you to manage how properly you are managing time। जो एक टॉपर बच्चा होता है ना, और जो एक एवरेज बच्चा होता है, उसमें डिफरेंस बस इसी चीज का है कि एवरेज बच्चे को भी वो फॉर्मूला पता है, बट 3 घंटे में वो पूरा पेपर नहीं बना पाता है, और जो टॉपर बच्चा है वो 3 घंटे में से 2.5 घंटे में ही पेपर बना लेते हैं, और आधे घंटे में अपना रिवाइज भी कर लेता है कहीं कुछ गलत सही तो नहीं किया है। It's all about managing Yes, your sir. time, and managing time will come only if you will be practicing hard। मैथ्स जो ऐसे हिंदी या इंग्लिश या पीई और उस टाइप नहीं है कि बैठ कर रट्टा मार रहे हो। मैथ्स जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका शार्प होगा, उतना फास्टली यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशन। लेटर ऑन आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट फास्ट क्विक यूजिंग मैथ्स। ओके, let us move to the next last question for today। टाइम कितना बाकी? अभी बहुत टाइम है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे? यूजिंग स्लोप शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाट डज इट मीन? कोलिनियर के लिए क्या बताया मैंने अभी? रुको मेरे को पूछने दो, शीतल बताएगी। शीतल बेटा, व्हाट आर कोलिनियर? इफ आई कैन प्रूव, समझो बात को, इफ आई कैन प्रूव, 3 पॉइंट्स दिए ना, हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन? 3। सपोज दिस इज पॉइंट ए, सपोज दिस इज पॉइंट बी, सपोज दिस इज पॉइंट सी। तो पॉइंट ए, बी एंड सी, सो slope of this AB will be what? M1, and slope of BC will be what? M2। if M1 is equal to M2 means what? These lines are having same slope, means same angle, and point B is lying in both AB and also in BC, which means what? A, B and C are co-linear। बस इतना ही करना है हमें। करो फटाफट M1 M2 निकालो, निकालो जल्दी से M1 M2। प्रैक्टिस हार्ड, मुझे पता है घर में कोई प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए मैं क्लासरूम में ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा।
व्हाट इज m1? प्रिंस बताएगा क्या है m1 का फॉर्मूला। प्रिंस बता बेटा क्या फॉर्मूला है m1 स्लोप का, क्या फॉर्मूला अभी हम पढ़े? y2 माइनस, बोल बेटा। y2 minus y1 वेरी गुड, अपॉन x2 माइनस x2 minus x1 y2 कितना है, ये 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, क्योंकि माइनस 2 बार आ गया तो वो क्या हो जाता है प्लस, अपॉन x2 5 minus minus plus. -1, तो कितना आ गया 2/4 दैट Yes. इज 1/, Yes, sir. yes They or are coplanar. सिमिलरली 1/2, m2 बताओ जल्दी से मुझे। 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 + 1 11 - 1 1. is 5/10. 5/10. Is what 1/, 1/2. so because 1 by slopes 2. are same and point B is lying on both the lines, so these 3 points are co-linear. ठीक है, ओके, कुछ डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. आगे सर बढ़। ये टॉपिक कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? हाँ, ये चैप्टर से, अब तो हम ओरिजिनल उस पे चालू हुए इस चैप्टर में। कल तक जो डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाल रहे थे वो तो 10th क्लास का रिवीजन था। टुडे ओनली वी हैव स्टार्टेड प्रॉपर्ली इन 11th क्लास सिलेबस ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एक्चुअली फाइंडिंग स्लोप्स, Okay, sir. परपेंडिकुलर, ये जो है बहुत यूजफुल है। आगे जेई मेंस का एग्जाम दोगे जब आप ना, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछता है वो। Yes, sir. यहाँ पर ही नहीं पूछेगा, बल्कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आगे जाके कैलकुलस पढ़ोगे वहां पे भी पूछता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, है ना? Yes, sir. ओके, सर इन दी एंड आप जेई की प्रिपरेशन कराएंगे थोड़ी सी? तो जेई और नीट की मैं कैसे कराऊंगा? वो तो मैं बायो वाला नहीं हूँ ना, नहीं नहीं, नीट की कराऊंगा। नो सर, चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन. यप, आई विल गिव, नो वरीज। ओके सर, थैंक यू सर. Okay, read this question. This question I'll be giving in your exam. बता दे रहा हूँ, ये as it is question दूंगा। As it is I'll be giving this question in your exam. 5 star मैं खुद ही डाल रहा हूँ। This is from NCERT. What this question is saying, please read this question first and then we will discuss. We will solve this question. कौन पढ़ेगा या पढ़ेगी? Sir. हाँ, आप पढ़ो। If पढ़ो ना। If the point H and O, H 0 है बेटा, O नहीं है, 0 है। okay sir, हम्म, A comma B and O comma K lie on a बेटा sir वो 0, उसको O 0 0 0, तो ये तीनों so that are lying on a same line. ठीक है, they are lying on a, same line. then you have to show A by H plus B by K equal to 1. Okay, कैसे prove? Yes sir. Lying on a same line means what? They are collinear, yes or no? Yes, sir. Yes. तो कोलिनियरिटी के लिए मैंने क्या बोला? आप स्लोप निकालो, m1 निकालो और m2 निकालो और उसको इक्वल कर दो, इक्वल टू 1 कर दो। निकालो m1 m2 फटाफट। m1 क्या आएगा बताओ? b minus 0 सर b by minus a y1 minus h. upon a minus h. And what is m2? k minus a by minus Minus b b. upon 0 minus a. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Because they are collinear, so the slope should be equal. Yes or no? अब इसके आगे क्या करेंगे? अब दिमाग में देखता हूँ किसके पास है। Let me see who can do this. b minus 0 is b only, right? b upon a minus h, k minus b upon minus a. तो मैं अगर इस माइनस को ऊपर ले जाता तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? b minus k upon a, क्योंकि ये माइनस को मैं ऊपर ले गया तो माइनस के एंड माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस बी, इसलिए मैं ऐसा लिखा। किसी को प्रॉब्लम इसमें? No sir. पक्का? अब क्या करूं? b अपॉन
a माइनस एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी विल बी a माइनस एच इंटू बी माइनस ए, यस और नो। अब इसके आगे कुछ मैनिपुलेशन करो ताकि आप यहाँ पे आ सको। मैंने इसलिए बोला ये क्वेश्चन 5 स्टार है, आई विल बी गिविंग दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। यहाँ तक मैंने बता दिया, आगे आप खुद करो। You have to solve by on your own. कैसे करेंगे सर ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। नहीं, बहुत इजी है, चलो देखो यहाँ तक मैं कैसा, सर डन। डन, गुड, हु सेड डन? सर अनुज। अनुज, वेरी गुड अनुज। a इंटू बी इज इक्वल टू a माइनस एच इंटू बी माइनस के, यहाँ तक तो मैं लिख चुका था, पिछले स्लाइड में लिखा था। इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये क्या होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू के माइनस b इंटू एच प्लस h इंटू के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ए बी है, दोनों साइड ए बी को उड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो इस साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, a इंटू के प्लस b इंटू एच मस्ट बी इक्वल टू h इंटू के। नाउ मुझे h के नहीं चाहिए, मुझे तो राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए था, इसलिए दोनों साइड इक्वेशन पे मैं h के से डिवाइड कर दिया, तो h के से कट गया 1, यहाँ पे h से h गया, यहाँ पे k से k गया, तो आ तो गया a बाय h इज इक्वल टू सॉरी प्लस b बाय k इज इक्वल टू 1। आराम से देखो। यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी आएंगे, जहां आपको थोड़ा सा अपना दिमाग जो है चलाना पड़ेगा। मैं एकदम 2 + 2 = 4 नहीं पूछने वाला हूँ क्लास 11 में। जेई मेंस का भी एक दो क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, एनडीए के एक दो क्वेश्चंस डालूंगा। यस सर। तब तो आपका दिमाग जो है खुलेगा ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक एक्सपोजर नहीं होगा, तो फिर इंडियन टीम टाइप हो जाओगे। इंडिया में तो खूब रन बनाते हैं, वहां जाके बाउंसर पे आउट होते जाते हैं सबके सब। हाँ ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। है ना, तो मेहनत करना है ना साथ में। आई विल टेल कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का बिफोर क्लोजिंग, वेटिंग। डन, ओके। यस सर। Okay. Yeah. Read this question. This is the last question for today. Using slopes, show that vertices are vertices of a parallelogram. भाई what is a parallelogram? मैं last class में भी बता चुका हूँ, चिक के टिक। I am interested in 4 type of quadrilaterals: square, parallelogram, rhombus, and rectangle. If I have to prove that it is a parallelogram, I simply have to prove that opposite sides are parallel to each other. यही तो करना है कि नहीं करना है? हाँ? Yes sir. So it means opposite slope will be equal, then हाँ, वेरी गुड। यही तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में भी, बताया था नहीं बताया था? Yes sir. इफ आई एम हैविंग अ पैरेललोग्राम, वहां पे हम डिस्टेंस इक्वल करते थे और डायगोनल्स इक्वल करते थे और नॉट इक्वल करते थे, तो उससे वो होता था। लेकिन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अब यूज नहीं कर रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया यूजिंग स्लोप। तो भाई m1, m2, m3 और m4 4 स्लोप होंगे। अगर मेरा m1 बराबर m3 हो गया, मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, कौन सी, a b c d, तो a b इज पैरेलल टू c d, ये प्रूफ हो जाएगा। और अगर मेरा m2 = m4 मैंने
निकाल लिया तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि साइड BC is parallel to AD and if opposite sides are parallel then I can prove that ABCD is a parallelogram. Yes or no? चलो लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी जल्दी, चारों Yes. स्लोप्स निकालो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब तक मैं इतने स्लोप के क्वेश्चन करा चुका हूँ 10-12 कि अब स्लोप निकालना अगर पूछोगे तो तुम लोग जो हो महान हो। कितना है भाई अंदर? ओके निकालो निकालो पूरा निकालो, जल्दी जल्दी निकालो सारा, हरी अप। और जिसको नहीं समझ में आया, अगर स्पीड लग रही है तो रोक के पूछ सकता है कि सर क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज फिर से बताइए ना, ठीक है? आई वोंट माइंड टेलिंग इट अगेन, नो प्रॉब्लम। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क, काइंडली आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कितना कितना आया चिरंजीव? ठीक है, F1 1/6, 1/6. 1/6, coming. 1/6 and M2 and M4 is coming as -3. Kindly verify whether Chiranjeev has calculated correctly or not. Yes, sir. Okay. आपने देखा कि अब हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिए, स्ट्रेट लाइन के बाद आई विल बी टीचिंग कैलकुलस लिमिट, ठीक है? एग्जाम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आपको टर्म 1 के लिए तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है? कैलकुलस के बाद हम -3, -3. कैलकुलस बोर्ड M2, M4. 12th क्लास के लिए मिड टर्म तुम्हारा मुझे पता नहीं है, ठीक है? मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप लोग का टर्म 1 में लेकिन जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Yes, sir. तो अभी मैंने आज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया, इस वीक के एंड तक वी विल बी फिनिशिंग स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट वीक विल बी फिनिशिंग लिमिट्स एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 1 वीक आई विल बी फिनिशिंग स्टैटिस्टिक्स। तो 3 चैप्टर हमारे 3 वीक्स में हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। अभी तक मैंने आपको कोई डीपीपी नहीं दिया है, किंतु परंतु बहुत जल्दी डेली आई विल बी गिविंग यू 5 to 10 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज़ वन स्टूडेंट वाज आस्किंग कि सर जेईई मेंस का क्या, ठीक है? Yes, sir. तो आई विल बी गिविंग यू भाई 1 घंटे की क्लास में मेरे ऑलरेडी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन तो आपको खुद से घर में डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए, डीपीपी जिसको बोलते हैं हम। Yes, sir. अब किसी को डाउट है And sir, when school will reopen? आप YouTube पे यही वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाल देना है, आप उसको प्लीज वो जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप डाउट पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, प्लीज उनको मोटिवेट करो क्लास ऑनलाइन करने के लिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनका नाम बताओ मुझे, मैं उनको खुद फोन करूंगा अभी उनके पेरेंट्स को। Yes, sir. बच्चे लोग Excuse me, sir. तो आज की क्लास खत्म करें फिर? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. यस टेल, हु इज आस्किंग मी? School reopen कब होंगे? हु वाज आस्किंग मी? Alish. Alish was Yes, asking. sir. Yes, Was sir. saying excuse me sir. Yes, sir. प्रिंस पूछ रहा था, पूछ भाई क्या पूछना है तेरे को? सर YouTube पे आप डाल रहे हो तो उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। लिंक सेंड तो कर ही दिया था कल लास्ट क्लास में, नहीं किया हूँ? कर दिया हूँ सर मैंने नहीं देखा होगा आपने, सर काइंडली रीचेक, आई एम सेंडिंग द लिंक्स, आई विल सेंड द लिंक अगेन, ओके? और अगर फिर कह रहा हूँ ओके सर।
तो प्लीज पूछ लो, शर्माओ मत कि बाकी लोग तो होशियार है सर तो मैं भी होशियार हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है पूछो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir.